Hello friend, good morning. Myself PG Bhaviskar. I welcome you all in the presentation of class 10 mathematics chapter number 4 quadratic equation. Dear friends, in a previous session we have seen what in by quadratic equation and then how to form a quadratic equation of a given situation. तो हमने कल डिस्कशन किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी तरह दी गई सिचुएशन से फॉर्म करना है, इसके बारे में हमने कल डिस्कशन किया था. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इन बाय सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो अगेन सो फर्स्ट व्हाट इज बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने कल देखा था. द इक्वेशन व्हाट इज जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax square plus bx plus c is equal to 0 and a is not equal to 0 and a b c are real numbers. A b c are what? Real number. Such a form of equation is called a quadratic equation. Here a is a coefficient of x square and it is not equal to 0. Okay, b is a coefficient of x and c is a constant term. Such a form of equation is called quadratic equation. Now what is its solution? What is by solution of quadratic equation? We will see this by using a particular example first. Suppose you are given any quadratic equation. For example, 2x square minus 3x plus 1 is equal to 0 be any quadratic equation. ये quadratic equation हमें एक दिया गया है. इस quadratic equation में if we replace the value of x by any real number, suppose हमने इस polynomial में x की जगह कोई भी real number replace करते हैं. For example, here first we will consider LHS. Your LHS is 2x square minus 3x plus 1. Here put x is equal to 1. यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू 1 पुट करके देखते हैं क्या होता है. देखिए 2x square means 2 into x square means 1 square minus 3x means minus 3 into 1 plus 1 as it. After simplifying we get what? इसका simplification यदि करते तो क्या होगा? 1 square is 1 and 2 into 1 is what? 2. Your first term become 2. Minus 3 into 1 is minus 3 and this plus 1 as it. This 2 plus 1 it become 3 and this minus 3 cancel. So we get here value is equal to what? 0. We get 0 and 0 is your RHS of a given quadratic equation, that is equal to RHS. That means here LHS is equal to RHS. LHS is equal to RHS. So we say that means if we put the value of variable in the given quadratic equation and LHS become RHS. यदि हम लोग ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है उसमें हम लोग x की जगह कोई भी रियल नंबर पुट करते हैं. पुट करने के बाद यदि आपका लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल होते हैं देन दिस वैल्यू of variable is called a solution. So in this way we get here one is a solution or we can also say root. One is a root or solution. One is the root of the quadratic equation 2x square minus 3x plus 1 is equal to 0. तो इसी एग्जाम्पल से क्लियर हो गया कि सोल्यूशन या रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है. तो इससे हम डेफिनेशन कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन द गिवन polynomial, given quadratic equation, or we can put in the LHS of the given quadratic equation and LHS become RHS. That means LHS equal to RHS. Then the value of variable is called the solution of quadratic equation. तो यहाँ पे ये definition किया गया है. तो definition again I repeat, if we put the value of variable in the LHS of equation, given equation, quadratic equation, and LHS become RHS, then the value of variable is called the solution of quadratic equation. तो ये quadratic equation का solution का definition है. हम कोई भी वैल्यू रिप्लेस करते हैं x की जगह कोई भी रियल नंबर यदि हम पुट करते हैं LHS साइड में और पुट करने के बाद यदि
लेफ्ट साइड और राइट साइड यदि इक्वल आता है तो वो जो हम वैल्यू x की पुट करते हैं, दिस वैल्यू इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको सॉल्यूशन बोलते हैं। ओके, सो हियर इन दिस इक्वेशन 2x square minus 3x plus 1 is 0. Here 1 is a root or solution of this quadratic equation. 2x square minus 3x plus 1 is equal to 0. Okay, so this is the definition of solution of quadratic equation. Now this 1 solution of this quadratic equation, 1 is a 0 of corresponding quadratic polynomial. ये जो solution हमने 1 निकाला इस quadratic का, उसमें जो corresponding quadratic polynomial है, which is corresponding quadratic polynomial here, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ये जो करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उस पोलिनोमियल का वो क्या होता है, जीरो होता है। हमने देखा है पोलिनोमियल चैप्टर में व्हाट इज मीन बाय जीरो। सो हियर 1 इज द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। तो ये जो 1 है, दिस 1 इज द जीरो ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ओके, तो इसका मतलब सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है कि उसमें जो करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है उसका जीरो ही उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट या सॉल्यूशन होता है। ओके, अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट इज वी कैन जनरलाइज दिस हियर। ये जो डेफिनेशन हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं। इन जनरल अ रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। कोई भी रियल नंबर, सपोज अल्फा लेते हैं हम लोग, अल्फा इज अ एनी रियल नंबर। ओके, इसको हम रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट किस कब बोल सकते हैं, इज रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो। कब? इफ वी रिप्लेस एक्स इज इक्वल टू अल्फा। यदि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग एक्स की जगह पुट एक्स इज इक्वल टू, सपोज हम अल्फा पुट करते हैं तो क्या होगा, ए इंटू अल्फा स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर है तो एक्स की जगह अल्फा पुट किया तो ए अल्फा स्क्वायर माइनस बी एक्स मीन्स माइनस हियर सॉरी हियर प्लस साइन ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा, ओके, प्लस सी एज इट इज इक्वल टू जीरो। यदि ये वैल्यू पुट करने के बाद इसका वैल्यू यदि जीरो आता है आपका, यानी कि ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू यदि जीरो आता है, then x is equal to alpha is a solution. Then we say that x is alpha is a solution of quadratic equation. तब ये अल्फा जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। ओके, आई विल रिपीट। इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल दैट मीन्स x is equal to alpha in the given quadratic polynomial या LHS of quadratic polynomial and LHS become RHS. That means if we put x is equal to alpha in left side, that is a alpha square plus b alpha plus c, and its value becomes 0. That means RHS. Then x is equal to alpha is the solution या roots of a quadratic equation or that satisfied a quadratic equation. That means this value x is equal to alpha satisfied the quadratic equation, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। अल्फा वैल्यू पुट करने के बाद यदि दोनों साइड इक्वल आती है तो वो वैल्यू सेटिस्फाइड करते हैं, ये बोला जाता है। सो दैट मीन्स अल्फा सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन। ओके, सो नाउ नोट दैट जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर सेम। इसका मतलब क्या होता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरो और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन या रूट सेम होता है, इक्वल होता है। ओके, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट या सॉल्यूशन उसमें जो करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसका जीरो ही उसका सॉल्यूशन होता है, ये हम बोल सकते हैं। ओके, अंडरस्टैंड? यू हैव ऑब्जर्व, अभी यहाँ पे आप लोग ऑब्जर्व किया होगा, हमने चैप्टर नंबर 2 जो पॉलिनोमियल चैप्टर हमारा, उसमें हमने देखा था, क्या देखा था, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट द मोस्ट 2 जीरो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में को ज्यादा से ज्यादा कितनी जीरो होते हैं, 2, बिकॉज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैव डिग्री 2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ज्यादा से ज्यादा 2 जीरो होते हैं। इसका मतलब वो करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कितने सॉल्यूशन या रूट्स होंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 सॉल्यूशन
या 2 रूट हो सकते हैं. ओके, सो एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव एट द मोस्ट 2 रूट्स. इसका मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको ज्यादा से ज्यादा कितने जीरो हो सकते हैं? एट द मोस्ट 2 जीरोस, 2 रूट्स, 2 सॉल्यूशंस. अगेन वी ऑलरेडी लर्न इन क्लास 9. क्या देखा हमने? हाउ टू फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. 9 क्लास में हमने फैक्टराइजेशन पॉलिनोमियल चैप्टर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन किया था. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन किस तरह किया जाता है उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था 9 क्लास में. आप लोग ऑलरेडी स्टडी किया है. नाउ वी शॉल यूज दिस नॉलेज फॉर फाइंडिंग द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो उसी नॉलेज का यूज करके हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स या सॉल्यूशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं. तो जस्ट आई रिव्यू हाउ टू फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन किसी तरह करना है इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहता हूँ. तो वी विल डिस्कस हियर. सपोज यू आर गिवन एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. सपोज हमें कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी गई है. फॉर एग्जांपल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. इस टाइप का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. एंड इफ सपोज हियर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, यदि ए जीरो आपका नहीं है तो क्या करना है? फर्स्ट फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी. ए मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी मीन्स कांस्टेंट ऑफ. तो पहले हम लोग ए और सी का प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, यानी कि ये प्रोडक्ट ए सी. दिस प्रोडक्ट इज योर ए सी. ओके, देन वी हैव टू फाइंड द टू फैक्टर ऑफ ए सी सच दैट देयर प्रोडक्ट इज ए सी बट देयर सम इज बी मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स. ये ए और सी का जो प्रोडक्ट आएगा उसके दो फैक्टर चूज करना है, फाइंड आउट करना है. लेकिन किसी तरह उनका दोनों का प्रोडक्ट ये सी, यानी कि इनका दोनों का प्रोडक्ट ये सी आना चाहिए और उनका दो फैक्टर हम फाइंड आउट किए उनका जोड़ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि बी आना चाहिए. सपोज दिस फैक्टर आर सपोज ए एन सी. सपोज ए एन सी ये इनका दोनों का प्रोडक्ट ए से आता है और इनका जोड़ जो है ए प्लस सी इज इक्वल टू सपोज बी है. तो इसी तरह दो फैक्टर फाइंड आउट करना है. फैक्टर फाइंड आउट करने के बाद देन वी हैव टू स्प्लिट दिस मिडल टर्म. ये जो मिडल टर्म है आपका bx, वी कैन स्प्लिट दिस मिडल टर्म इन द फॉर्म ऑफ दिस टू फैक्टर. ये b जो है a प्लस सी है तो ये b a प्लस सी के फॉर्म में लिखना है. तो देन वी कैन रीराइट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. योर फर्स्ट टर्म x स्क्वायर एज इट. Now we can write bx. How to write bx? We can write ax plus cx because your b is a plus c. So we can put here b is equal to a plus c. b is equal to a plus c put किया और x से multiply किया तो ax plus cx plus your last term c is equal to your last term is c as it. Now here make the group of first two. ये पहले दो का ग्रुप बनाना है और लास्ट टू का ग्रुप बनाना है. बाद में ये फर्स्ट ग्रुप में से कॉमन निकालना है. तो हमें दिखाई दे रहा है फर्स्ट ग्रुप में कॉमन क्या है? x कॉमन है. x कॉमन निकालने के बाद आपका यहाँ पे बच जाता है x. फर्स्ट टर्म में बच जाता है x. यहाँ पे सेकंड टर्म में बच जाता है ओनली 1. इन सेकंड टर्म सेकंड ग्रुप व्हाट इज कॉमन? c इज कॉमन. c कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे बच जाता है आपका x प्लस 1. नाउ हियर दिस x प्लस 1 इज कॉमन. इन सेकंड ब्रैकेट व्हाट रिमेन हियर? हियर रिमेन x plus in second remain b. So we get this is a factorization of this given quadratic polynomial. तो इसी तरह ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से करना है. ये हमने 9 क्लास में डिस्कस किया था. उसके ऊपर के एग्जांपल भी बहुत सारे हमने सॉल्व किए थे. ओके, तो यू शुड रिमाइंड इट. नाउ यूजिंग दिस टेक्निक हाउ टू फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसी तरह फैक्टराइज करना है इसके बारे में एक एग्जांपल लेके डिस्कस करते हैं. तो वी विल टेक एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस टॉपिक्स. ओके, तो योर फर्स्ट एग्जांपल इज फाइंड एक्सरसाइज 4.2. फाइंड रूट ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन. ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है उसका हमें रूट्स या सॉल्यूशन निकालना है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड से. तो हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड. नाउ सी योर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज व्हाट? इट इज द 2x स्क्वायर plus x minus 1 is equal to 6. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंपेयर
the given quadratic equation with the standard form of quadratic equation. You are already familiar with the standard form of quadratic equation. What is the standard form of quadratic equation? Okay, what is standard form of quadratic equation? Standard form of quadratic equation is what? Ax square plus bx plus c is equal to 0. This is the standard form of quadratic equation. Now we can compare given quadratic equation with this standard form and find out the value of a, b and c. ये क्या होता है? What is a? A is a coefficient of x square. ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ये जो है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, तो इसी तरह गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आपका? इट इज 2 है. सो वी गेट द वैल्यू ऑफ ए इज 2. सेम वे व्हाट इज वैल्यू ऑफ बी? बी इज अ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होता है. इन अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स? देयर इज नो एनी नंबर, दैट मींस देयर इज अ 1. वहां पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कोई नंबर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वहां पे होता है 1. सो हियर वैल्यू ऑफ बी इज 1. Correct? Now C is a constant term. What is constant term in the given quadratic polynomial? It is minus 6. So we get the value of A is equal to 2, B is equal to 1 and C is equal to minus 6. Correct? Now here value of A is other than 0. Sorry, A is other than 1. A का वैल्यू 0 तो नहीं है, लेकिन other than 1 है. A के अलावा है. तो अब क्या कर रहे हैं? We have to find the product of A and C. हम लोग A और C का प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं. Put the value of A and C. Value of E is your 2 into C means minus 6 and 2 into minus 6 means minus 12. So we get the product of A and C is a minus 12. Okay. Here product of A and C. Product of A and C is what your? It is a minus 12. Now we have to find here टू फैक्टर्स. यहाँ पे -12 के दो फैक्टर हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन किसी तरह उनका दोनों का प्रोडक्ट तो -12 आना ही चाहिए. बट देयर सम इज व्हाट? बी. बी मींस योर व्हाट इज वैल्यू ऑफ बी? 1. देयर सम इज 1. तो यू हैव टू फाइंड आउट टू फैक्टर्स such that their product is -12 but their sum is 1. Now tell me which are the factors? The factors are 4 plus 4 and minus 3. Check here. These are correct or not? See, what is their product? 4 into minus 3, minus 12. So we get product is minus 12. What is their sum? 4 plus minus 3, sum is 1. So that means B. So that means these are the correct factors. So 4 plus 4 and 4 and minus 3 are the correct factor here. Okay. Now we can split this middle term. Middle term means which is middle term? Plus x in the form of these two factor. ये जो दो फैक्टर हमने फाइंड आउट किए उनके फॉर्म में ये जो मिडल टर्म है x स्प्लिट करके लिखना है. तो हाउ टू राइट x? वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ दिस टू फैक्टर एज 4x minus 3x. 4x और माइनस 3x कितना होता है? x ऑटोमेटिकली x आता है, लेकिन हमें ये दो फैक्टर के फॉर्म में स्प्लिट करके लिखना है. तो वी विल स्प्लिट इट. योर फर्स्ट टर्म 2x square as it plus x can be written as plus 4x minus 3x in the form of this factor. Last term minus 6 as it is equal to 0. Now here make the group of 2 2. So first two group, make the group of first two, and 2x square plus 4x is one of the group, and second is what? Minus 3x minus 6 is the second group. Now see, in a first group what is common? Your first term, in a first group first term is 2x square plus 4x. तो ऑब्जर्वेशन से आप लोग बोल सकते हैं कि यह कॉमन क्या है. So there is a common 2x. So we can take here 2x common. 2x कॉमन निकालने के बाद ये जो फर्स्ट टर्म है 2x स्क्वायर, उसमें से 2x कॉमन निकाल लिया तो आपका बच जाएगा x प्लस ये 4x में से 2x कॉमन निकाल लिया तो आपका बच जाए 2. सो यहाँ पे 2x कॉमन निकालने के बाद ब्रैकेट में रहता है x प्लस 2. नाउ फ्रॉम द सेकंड ग्रुप वी शुड ऑल्सो टेक अ कॉमन. लेकिन कॉमन निकालते समय ये ध्यान में रखना है कि यह कॉमन निकालने के बाद ये जो ब्रैकेट आएगा ये फर्स्ट ब्रैकेट ही होना चाहिए, सेम ब्रैकेट आना चाहिए. इसी तरह ये सेकंड ग्रुप में कॉमन निकालना है. तो हमें ये जो सेकंड ग्रुप है -3 और -6, इसमें हमें -3 कॉमन दिखाई दे रहा है. सो वी कैन टेक हियर -3 कॉमन. आफ्टर टेकिंग -3 कॉमन वी गेट हियर -3x में से -3 कॉमन निकाल लिया तो ब्रैकेट में ये प्लस यानी कि x हो गया, और -6 में से -3 कॉमन निकाल लिया. और जब हम लोग माइनस साइन कॉमन निकालते तब ब्रैकेट में ये टर्म का साइन चेंज होता है. प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस.
तो यहाँ पे ये दोनों माइनस थे तो दोनों प्लस हो गया। तो यहाँ पे -6 में से -3 कॉमन निकाल लिया तो आपका बच गया +2। ओके, नाउ सी अगेन we get this step. Now in this step here, there are two terms. First term is 2x into x plus 2. Second term is -3 into x plus 2. अब ये दोनों टर्म में हमें ये जो ब्रैकेट है x plus 2 कॉमन दिखाई दे रहा है। अगेन वी कैन टेक दिस ब्रैकेट x plus 2 कॉमन। x plus 2 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे आपका बच जाता है 2x। ओके, नाउ सेकंड जो टर्म है उसमें से ये x plus 2 कॉमन निकाल लिया तो आपका बच जाता है -3, यानी कि 2x - 3 is equal to right side 0 as it. Now here the product of these two bracket is 0. ये जो स्टेप आपका आ गया है x plus 2 into 2x - 3 is equal to 0. That means here the product of two bracket is 0. या product of two number is 0. When the product of two number is 0, that means either one is 0. कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट यदि 0 आता है तो इसका मतलब इसमें से एक कोई तो भी 0 होना चाहिए, एक तो फर्स्ट नहीं तो सेकंड. So using this technique, product of these two bracket is 0. That means either first bracket 0 और second bracket 0. एक तो पहला bracket 0 होगा नहीं तो दूसरा. तो so we can take here x plus 2, यानी कि first bracket 0 means x plus 2 0, or we can use here word or second bracket means 2x minus 3 is equal to 0. Now here these are the linear equation in one variable. तो ये x plus 2 is 0 और 2x minus 3 is 0, ये दो आपको linear equation मिल गए. So here x plus 2 is 0, एक linear equation है, दूसरा 2x minus 3 is equal to 0. Now we can solve it and find out the value of x. So solving we get what? अभी यहाँ पे ये 2 ट्रांसफर किया तो it becomes minus. So we get x is equal to -2. यहाँ पे 2x है एज इट, ये -3 राइट साइड में ट्रांसफर किया, इट बिकम +3. नाउ दिस x इज इक्वल टू -2 एज इट. अभी ये 2 ट्रांसफर किया, मल्टीप्लाई कर रहा है तो उस साइड में राइट साइड में वो डिवाइड करेगा. सो वी गेट x इज इक्वल टू 3/2. सो वी गेट हियर x इज इक्वल टू -2 and x is equal to 3/2. These are the roots or solution of given quadratic equation. So x is equal to -2 and x is equal to 3/2 are the roots of given quadratic equation. 2x square plus x minus 6 is equal to 0. So in this way we will find the solution of any quadratic equation. Okay friends, are you understand? If you have any doubt, then ask me. You can chat me with my WhatsApp number. Now we will see the next example. Your second example is find the root of following quadratic equation by factorization method. Same method. So given quadratic equation is here. Under root 2x square plus 7x plus 5 root 2 is equal to 0. यहाँ पे आप लोग को अंडर रूट का साइन दिखाई दे रहा है इसलिए आप लोग डर जाते हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं. Try to solve it by step, then we get answer easily. So what is your first step? First step is we first compare the given quadratic equation with the standard form of quadratic equation. तो हम लोग पहले दी गई जो quadratic equation है वो standard form से compare करेंगे. और standard form of quadratic equation is x square plus bx plus c is equal to 0 है. इसके साथ given quadratic equation compare करना है and find out the value of a, b and c. तो आप लोग इजीली a b c का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो a मीन्स व्हाट इज वैल्यू ऑफ a हियर? a मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x स्क्वायर जो है उसका कोएफिशिएंट आपका यहाँ पे क्या है? अंडर रूट 2 है. सो वी गेट वैल्यू ऑफ a इज अंडर रूट 2. व्हाट इज वैल्यू ऑफ b? b is what? Coefficient of x, it is 7. And c is what? Constant term. What is constant term? 5 root 2. So value of c is 5 root 2. So in this way we get the value of a, b and c. तो हम लोग आसानी से a, b, c का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है वो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है. यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ओके, नाउ हियर वी गेट द वैल्यू ऑफ ए, बी, सी. Now we will find here value of a is under root 2. ये का वैल्यू आपका क्या है? अंडर रूट 2 है and it is not equal to 1 है. 0 भी तो नहीं है, not equal to 1 भी. Then क्या करना है? Find the product of a and c. a into c. a का वैल्यू अंडर रूट 2 into c is आपका 5 root 2. ये प्रोडक्ट क्या होगा?
ये अंडर रूट 2 एंड 2 अंडर रूट 2 इसका प्रोडक्ट 2 हो गया इंटू ये 5 यानी कि 2 into 5 that is we get 10. So here a into c is 10. We get here product of AC is here 10. AC का प्रोडक्ट आपका आ गया 10 plus 10. Now we find here two factor of this product यानी कि 10 such that their product is plus 10. प्रोडक्ट वही नंबर आना चाहिए, प्लस साइन तो प्लस, माइनस है तो माइनस. यहाँ पे AC प्लस 10 यानी कि प्लस 10 ही आना चाहिए. और उनका दोनों का सम B यानी कि 7 आना चाहिए. तो ये 10 के ऐसे दो फैक्टर फाइंड आउट करो आप लोग, ताकि उसका प्रोडक्ट 10 ही आना चाहिए प्लस 10 और जोड़ आपका 7 आना चाहिए. तो विच आर द करेक्ट फैक्टर्स? सो करेक्ट फैक्टर्स आर 2 and 5. सी हियर 2 and 5. चेक कीजिए दोनों का प्रोडक्ट कितना आता है. 2 into 5 10. करेक्ट. व्हाट इज देयर सम? 2 plus 5 is equal to 7. That is B. Correct. So these are the correct factors. तो यहाँ पे आप लोग ये चेक करना है, नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, यही गलत कर देते और आगे बढ़ते रहते. यह गलत हो गया तो आपका आगे वाला सब प्रॉब्लम गलत होता है. तो यहाँ पे आप लोग चेक करना है. तो ओके, नाउ वी गेट करेक्ट फैक्टर्स. टू फैक्टर्स आर 2 and 5. नाउ वी कैन स्प्लिट दिस मिडल टर्म 7x इन द फॉर्म ऑफ दिस टू फैक्टर 2 and 5. 7x हमें 2 और 5 के फॉर्म में लिखना है. तो हाउ टू राइट 7x? इट कैन बी रिटन एज 2x plus 5x. ये दो फैक्टर के फॉर्म में. तो split here your first term under root 2x as it, under root 2x square as it. We can write 7x in the form of root factor as a 5x plus 2x. Okay, 5x plus 2x या 2x plus 5x भी लिख सकते हैं आप लोग, no problem. Plus last term 5 root 2 as it is equal to 0 as it. Now here make the group of first two and last two. So your group of first two is under root 2x square plus 5x. Second group is your 2x plus 5 root 2 is equal to 0. ये दो ग्रुप बन गए. नाउ इन फर्स्ट ग्रुप टेक हियर कॉमन. फर्स्ट ग्रुप में आपको कॉमन दिखाई दे रहा है. व्हाट इज कॉमन? देयर इज अ x कॉमन. सो वी कैन टेक x कॉमन. x कॉमन निकाल लिया तो आपका बच जाता है अंडर रूट 2x प्लस 5x में से x कॉमन निकाल लिया तो प्लस 5. नाउ इन सेकंड ग्रुप व्हाट इज कॉमन? यहाँ पे हमें अंडर रूट 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, बिकॉज दिस 2 कैन बी रिटर्न एज अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2. ये 2 जो है यहाँ पे ये जो 2 है, ओके, ये 2 हम लोग अंडर रूट 2 लिख सकता है. उसमें से एक अंडर रूट 2 कॉमन निकाल लिया तो आपका बच जाएगा अंडर रूट 2 और x, तो अंडर रूट 2 x बच जाएगा. प्लस ये 5 अंडर रूट 2 में से अंडर रूट 2 कॉमन निकाल लिया तो बच जाएगा 5. सो वी गेट अंडर रूट 2 कॉमन निकालने के बाद अंडर रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू राइट साइड 0 एज इट. नाउ हियर देयर आर टू टर्म्स. ये एक पहली टर्म है और ये दूसरी टर्म है. पहली टर्म है आपकी x इंटू अंडर रूट 2 एक्स प्लस 5. दूसरी टर्म है आपकी अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 एक्स प्लस 5. ओके, इज इक्वल टू 0. तो ये दो टर्म है. अभी ये दो टर्म में हमें ये जो ब्रैकेट है ये दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है. सो वी कैन टेक दिस ब्रैकेट एज ए कॉमन. सो कॉमन निकाल लिया, अंडर रूट 2 एक्स प्लस 1 ब्रैकेट कॉमन निकाल लिया. ब्रैकेट कॉमन निकालने के बाद फर्स्ट टर्म में आपका बच जाता है x प्लस सेकंड टर्म में बच जाता है अंडर रूट 2 इज इक्वल टू राइट साइड 0 एज इट. ओके, सो वी गेट हियर दिस इज अ फैक्टराइजेशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया आपको लेफ्ट साइड में, एंड इज इक्वल टू क्या है 0. सो हियर प्रोडक्ट ऑफ दिस टू ब्रैकेट 0, that means either first bracket 0 or second 0. So first bracket means under root 2 plus 5 is equal to 0 or x plus under root 2 is equal to 0. Okay, so this is a linear equation in one variable. Now we can solve here. After solving here, under root 2x plus 5u is equal to 0. ये पहले इक्वेशन है, उसमें x का वैल्यू हमें सॉल्व करना है. तो फर्स्ट वी विल ट्रांसफर 5 फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड. So it become minus. So we get what? Under root 2x is equal to this 5 become minus 5. Now we can transfer under root 2 from left side to right side. X is a multiple of 2. So this is going on denominator. So we get here x is equal to minus 5 upon under root 2. So here we get value of x is what? Minus 5 under root 2. Correct? In second here, we can transfer this root 2 from left side to right side. So we get x is equal to this under root 2 become minus under root 2. So we get x is equal to minus under root 2. So here we get x is equal to
तो हमें यहाँ पे मिल जाता है x इज इक्वल टू -5 √2 और x is equal to -√2, and these are the roots or solution of given quadratic equation. So therefore -5 √2, therefore -5 √2 and -√2 are the roots or solution of this given quadratic equation. Okay friends, are you understand? Now so therefore already लिखा है हमने. Now next one more example. Find the root of following quadratic equation by factorization method. ये एक quadratic equation दिया गया है, इसको हमें solution find करना है by using quadratic factorization methods है. Now see here, if there is a terms in the form of numerator denominator यदि है तो हम लोग क्या थोड़ा डर जाता है, लेकिन डरने की बात नहीं. फर्स्ट वी हैव टू सिंप्लीफाई इट. सिंप्लीफाई करने का मतलब होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में. ये जो थर्ड टर्म है उसमें डिनोमिनेटर आपका 8 है ना. फ्रैक्शन में यदि है तो हम लोग डर जाते हैं. तो क्या करना है, यदि इस टाइप का कोई भी इक्वेशन है तो मल्टीप्लाई थ्रू आउट दिस इक्वेशन बाय द एलसीएम ऑफ देयर डिनोमिनेटर. उस इक्वेशन की हर एक टर्म को उसका डिनोमिनेटर का जो एलसीएम होगा उससे थ्रू आउट मल्टीप्लाई करना है, यानी कि हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना है. तो देखिए फ्रेंड्स, इक्वेशन फर्स्ट में आपका फर्स्ट टर्म है 2x², यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं, इसका मतलब डिनोमिनेटर 1 है. सेकंड टर्म आपका -x है, यहाँ पे इसका भी मतलब डिनोमिनेटर आपका 1 है. थर्ड टर्म में आपका डिनोमिनेटर 8 है. ओके, तो आपका डिनोमिनेटर फर्स्ट टर्म में 1 है, सेकंड टर्म में 1 है, थर्ड टर्म में 8 है. तो इनका एलसीएम क्या होता है 8. तो इनका तीनों का एलसीएम 8 है. ये 1 है तो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अदर नंबर है तो क्या कर रहे हैं, जो भी डिनोमिनेटर में नंबर हो गए उनका एलसीएम फाइंड आउट करना है. और यहाँ पे डिनोमिनेटर का एलसीएम 8 है, तो ये 8 एलसीएम हमें मिल गया. तो ये जो एलसीएम है डिनोमिनेटर का, उससे इक्वेशन की हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना है. सो हियर मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन थ्रू बाय 8. तो वी विल मल्टीप्लाई हियर, मल्टीप्लाई द गिवन इक्वेशन बाय द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, दैट इज 8 हियर. देन वी गेट व्हाट, 8 से मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट टर्म आपका 2x² था, उसका 8 से मल्टीप्लाई किया तो इट बिकम्स 16x². सेकंड टर्म -x है, उसको 8 से मल्टीप्लाई किया तो इट बिकम -8x. थर्ड टर्म आपका 1/8 है, उसको 8 से मल्टीप्लाई किया, दिस 8 कैंसिल, वी गेट ओनली 1. सो योर थर्ड टर्म इज 1 एंड इज इक्वल टू राइट साइड 1. सो वी गेट द सिंपलेस्ट फॉर्म. तो अभी ये जो इक्वेशन हमें मिला है, ये इस इक्वेशन का क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म. और यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं है और डिनोमिनेटर चला गया तो हम आसानी से अभी इसको फैक्टराइज कर सकते हैं. तो ओके, now we can factorize here. Now see here. तो नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा, कंपेयर दिस इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. इसके साथ ये कंपेयर करेंगे हम लोग. कंपेयर करने के बाद a का वैल्यू यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x² आपका है 60. वैल्यू ऑफ b मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x गिवन इक्वेशन में आपका है -8, सो वी गेट b इज -8. c मीन्स कांस्टेंट टर्म, गिवन इक्वेशन में आपका कांस्टेंट टर्म में 1 है, सो वी गेट c इज 1. सो वी गेट हियर a b c, and here a is your 16 and that is not equal to 1. so we can find first product of ac. ये और c का प्रोडक्ट फाइंड करना है. ये आपका 16 into c means 1, that is we get 16. so we get the product of ac is 16. प्रोडक्ट ऑफ ac आपका कितना है 16 है. now we can find the two factor of this 16. ये 16 के ऐसे दो फैक्टर फाइंड करना है such that their product is 16 plus 16 but their sum is b. b means what, -8. उनका जोड़ आना चाहिए -8. जोड़ -8 कब आता है, दोनों भी माइनस होना चाहिए, और उनका प्रोडक्ट प्लस आता है क्योंकि प्रोडक्ट हमें प्लस चाहिए, तो वो दोनों नंबर माइनस होना चाहिए. तो विच आर द नंबर्स. तो वैसे कौन से दो फैक्टर मिल सकते हैं आप लोगों को जिनका दोनों का प्रोडक्ट +16 होगा और जोड़ -8 होगा. ओके, ट्राई टू योरसेल्फ. व्हाट आर द फैक्टर्स. सो करेक्ट फैक्टर्स आर -4 -4. चेक कीजिए दोनों का प्रोडक्ट कितना आता है, -4 into -4 16 आ गया 16. दोनों का जोड़ कितना आता है, -4 प्लस -4 इट इज -8 आ गया आपका b. सो दीज आर द करेक्ट फैक्टर्स. नाउ स्प्लिट द मिडल टर्म in the form of these two factor. That means we have to write -8x as a
minus 4x minus 4x. So we can split here middle term. Your first term 16x square as it. This minus 8x can be written as minus 4x plus last term plus 1 as it is equal to 0 right side as it. So in this way we can split here middle term. Now make the group of first two यानी कि 16x स्क्वायर माइनस 4x एक ग्रुप बना लिया. सेकंड माइनस 4x प्लस 1 का दूसरा ग्रुप बना लिया. ये दो ग्रुप बन गए. अभी फर्स्ट ग्रुप में देखिए आपको कॉमन दिखाई दे रहा है. व्हाट इज कॉमन? हियर इज 4x. सो वी कैन टेक 4x कॉमन. 4x कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे आपका बच जाता है 16x स्क्वायर में से 4x कॉमन निकाल लिया तो 4x आपका बच गया. माइनस 4x में से 4x कॉमन निकाल लिया तो ये आपका माइनस 1 बच गया. ओके. सेकंड ग्रुप में आपको कॉमन निकालना है. क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? नाउ सी हियर, हमें ये जो ब्रैकेट आने वाला है ये फर्स्ट ही आना चाहिए 4x माइनस 1 यहाँ पे, लेकिन ये माइनस 4x प्लस 1 है. उनका साइन ही सिर्फ चेंज है. तो क्या करना होगा? वी कैन टेक हियर माइनस 1 कॉमन. तो हमें ये जो सेकंड ग्रुप है उसमें माइनस 1 कॉमन यदि निकालते हैं तो दोनों का साइन चेंज होगा. तो वी कैन टेक हियर माइनस 1 कॉमन. माइनस 1 कॉमन निकाल लिया तो माइनस 4x में से माइनस 1 कॉमन निकाल लिया तो आपका बच जाता है प्लस 4x यानी 4x. तो यहाँ पे आप गया प्लस 4x. प्लस 1 में से माइनस 1 कॉमन निकाल लिया तो आपका बच जाता है माइनस 1. और ध्यान में रखना है कि यदि माइनस साइन कॉमन निकाल रहे तो ये दोनों टर्म का साइन चेंज होता है. तो ये माइनस 4x बिकम प्लस 4x हो गया, प्लस 1 बिकम माइनस 1. ओके. एंड इज इक्वल टू राइट साइड 0 एज इट. नाउ दिस 4x माइनस 1 ब्रैकेट इज कॉमन. यहाँ पे ये 4x माइनस 1 ब्रैकेट कॉमन दिखाई दे रहा है. सो वी कैन टेक दिस ब्रैकेट कॉमन. इन सेकंड ब्रैकेट रिमेन व्हाट? यहाँ पे 4x आपका बच जाता है, यहाँ पे माइनस 1. So second bracket is also 4x minus 1 is equal to 0. Now here product of these two bracket is 0. That means either first bracket 0 or second 0. So that means your first bracket means 4x minus 1 0 or second bracket means also 4x minus 1 is 0. Now solve it. ये minus 1 जो है ट्रांसफर किया तो 4x is equal to minus 1 become plus 1. Same way 4x is equal to 1. यहाँ पे भी 1 ट्रांसफर किया. नाउ 4 ट्रांसफर किया तो x इज इक्वल टू क्या होगा? 1/4. और इधर भी x इज इक्वल टू 1/4. x also 1/4. So we get both value are equal. So we get both value of are equal 1/4, 1/4. That means this quadratic equation have same root. इसका मतलब इस quadratic equation को दोनों रूट सेम मिल गए 1/4, 1/4. So 1/4 or 1/4 are the roots, or we can also say solution of this quadratic equation. So we get 1/4, 1/4 are the roots or solution of given quadratic equation. 2x square minus x plus 1/8 is equal to 0. तो इसी तरह हम लोग कोई भी quadratic equation का solution या हम लोग roots find out कर सकते हैं. Now we will see one more example. It is the word problem. This problem is what? John and Jivanti together have 45 marbles. ये दोनों के पास टोटल कितने मार्बल है? 45 मार्बल. Both of them lost 5 marble each. Loss का मतलब निकल गए, उनके पास से नहीं, उनके पास नहीं है. ओके. Both of them lost 5 marble each. And product of the number of marble they have now is 124. 5 मार्बल दोनों के पास से लॉस हो गया, निकल गए. निकलने के बाद उनके पास जो मार्बल बच जाते हैं उनका प्रोडक्ट है 124. देन फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ. तो शुरुआत में उनके पास कितने मार्बल होंगे ये हमें फाइंड आउट करना है. नाउ फ्रेंड्स, इसमें जॉन या जयवंती के पास कितने मार्बल है हमें फाइंड आउट करना है. तो ये दो चीजें, लेकिन दो में हमें कंपैरिजन दिया गया है कि दोनों के पास इकट्ठा किया तो वो होता है 45 मार्बल्स. दोनों का जोड़ कितना है? 45 मार्बल्स. तो हम लोग तो किसी का एक के पास कितने मार्बल है ये हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कोई भी एक वेरिएबल से. तो हम लोग जनरली x से डिनोट करते हैं. तो हम लोग मान देते हैं कि सपोज नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैव, लेट अस द नंबर ऑफ जॉन्स मार्बल हम x मान लेते हैं. x, जॉन के पास x मार्बल मान लिया. दोनों के पास कितना है? टोटली 45.
उसमें से जॉन के पास x है तो J1 के पास कितने होंगे, तो टोटल में से जॉन के पास जितने वो माइनस करना है, तो J1 के पास कितने होंगे 45 minus x, therefore number of J1 this marble is 45 minus x, 45 minus x। अभी दोनों के पास से 5 लॉस हो गए, तो जॉन के पास स्टार्टिंग में x थे, उसमें से 5 लॉस हो गए, तो कितने बच जाएंगे, यानी कि 5 माइनस हो गए, तो जॉन के पास बच जाएंगे आपके x माइनस 5। सो नंबर ऑफ जॉन्स मार्बल आफ्टर लॉसिंग 5 मार्बल्स, 5 मार्बल लॉस होने के बाद जॉन के पास जो मार्बल बच जाएंगे वो हो गए x माइनस 5, और जे उनके पास 45 माइनस एक्स थे, उसमें से और 5 माइनस हो गए, लॉस हो गए, तो 45 माइनस एक्स माइनस 5 लॉस हो गया, यानी कि माइनस, तो 45 में से 5 गया तो आपका बच जाएगा 40 माइनस एक्स, तो जेवन के पास बच जाएगा आपका 40 माइनस एक्स। ओके, तो 5 लॉस होने के बाद जॉन के पास है कितने मार्बल, x माइनस 5, और जयवंती के पास बच जाते हैं 40 माइनस एक्स, और हमें कंडीशन दिया गया है कि 5 लॉस होने के बाद जो मार्बल बच जाते हैं उनका दोनों का प्रोडक्ट है 124। सो अकॉर्डिंग टू दिस गिवन कंडीशन हमें क्या दिया गया है, द गिवन दैट द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्बल इज 124, यानी कि जॉन के पास जो x माइनस 5 है और जयवंती के पास 40 माइनस एक्स है, उनका प्रोडक्ट 124। सो हियर x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। नाउ ट्राई टू simplify it and form linear equation, sorry quadratic equation, not linear, quadratic। इसका मतलब यहाँ पे हमें सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना है इसका मतलब पहले ये प्रोडक्ट करना है, बाद में ट्रांसफर करके राइट साइड 0 बनाना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो हाउ टू सिंप्लीफाई इट, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में प्रोडक्ट है 2 ब्रैकेट का, ओके, तो हम लोग पहले x से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो x से मल्टीप्लाई किया तो x सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 40, यानी कि आपका हो गया 40x, x इंटू माइनस एक्स इट बिकम माइनस एक्स स्क्वायर, देन अभी माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 5 से सेकंड ब्रैकेट को, माइनस 5 इंटू 40 इट बिकम माइनस 200, am I right? माइनस 5 इंटू माइनस एक्स इट बिकम प्लस 5x, इट बिकम्स व्हाट, प्लस 5x, और ये 124 इधर ट्रांसफर किया तो इट बिकम्स माइनस 124, और राइट साइड में आपका बच जाता है 0। नाउ अभी देखिए ये माइनस एक्स स्क्वायर ट्रांसफर किया उस साइड में, तो ये क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर, तो हम लोग एक्स स्क्वायर ट्रांसफर कर लेते, इट बिकम प्लस एक्स। अभी ये 40x और प्लस 5x, ये टोटल हो गया 45 लेफ्ट साइड में, उधर ट्रांसफर किया तो ये क्या होगा, माइनस होगा, इट बिकम्स माइनस 45x, राइट। फिर से लेफ्ट साइड में ये 40x और 5x इनका जोड़ लेफ्ट साइड में होगा 45x, लेकिन हम लोग राइट साइड में ट्रांसफर कर रहे हैं तो इट बिकम्स 45x। नाउ कांस्टेंट टर्म आपका ये माइनस 200 है और ये माइनस 124 है, तो माइनस 200 और 124 ये जोड़ हो जाता है आपका माइनस 324, राइट। उधर ट्रांसफर किया तो माइनस का इट बिकम प्लस, सो प्लस 324, ओके, और अभी इधर कुछ भी नहीं बच रहा है, यानी कि 0 बच रहा है, इज इक्वल टू 0। तो अभी साइड इंटरचेंज करके हम लोग इसी तरह लिख सकते हैं कि वो साइड ये इधर लिखा तो इट बिकम्स व्हाट, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। सो वी गेट हियर दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ पे हमें ये क्या मिल जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाता है। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1 है, सो वैल्यू ऑफ इज 1, ओके, एंड जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यदि 1 है तो डायरेक्टली ये जो कांस्टेंट टर्म है आपकी 324, इसके दो फैक्टर चूज करना है, फाइंड करना है, such that their product is 324 but their sum is b means minus 45। इनका प्रोडक्ट प्लस 324 आना चाहिए, जोड़ 45 आना चाहिए। तो इसी तरह आप लोग ट्राई करना है कि उसके फैक्टर क्या होंगे, ओके, ट्राई योर सेल्फ, बट एक्चुअली फैक्टर्स आर व्हाट, माइनस 39, सॉरी 36 वन फैक्टर एंड सेकंड इज माइनस 9। यदि हम लोग ये दोनों का प्रोडक्ट करते तो आपका प्रोडक्ट प्लस 324 होगा और जोड़ माइनस 45 होगा, ये आप लोग चेक करना है, ओके। सो दिस आर द करेक्ट फैक्टर। Now we can split here your middle term minus 45x in the form of these two factor. So we can split here this x square as it, minus 45x can be written as minus 36x minus 9x,
plus last term 324 as it is equal to 0. Now see here, make the group of first two. पहले दो का एक ग्रुप बना है, दूसरे दो का। पहले ग्रुप में कॉमन दिखाई दे रहा है x, x कॉमन निकालने के बाद बच जाता है आपका x माइनस 36। सेकेंड ग्रुप में -9 कॉमन है, -9 कॉमन निकालने के कारण -9 कॉमन है तो साइन चेंज होगा, दिस माइनस बिकम प्लस, x बच जाता है। और ये +24 में से -9 कॉमन निकाला है तो यहाँ पे बच जाता है आपका -36 इज इक्वल टू 0 राइट साइड एज इट। Now see here, this x minus 36 bracket is common, so we can take x minus 36 common. In second bracket, what remain? X minus 9 is equal to 0. Okay, so we get the factorization. तो हमें यहाँ पे ये factorization मिल जाता है x minus 36 into x minus 9 is equal to 0. आप लोग यहाँ पे यदि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो आप लोग इसका फैक्टराइजेशन डायरेक्टली इसी तरह कर सकते हैं, क्योंकि हमें 300 ये आपका जो कांस्टेंट टर्म है 324, इसके दो फैक्टर हमने फाइंड आउट किए थे, -36 और -9। तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यदि 1 है तो आप लोग डायरेक्टली उसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं x, क्योंकि वेरिएबल x है, x पहला फैक्टर आपका -36, दूसरा x, दूसरा फैक्टर आपका -9 है, तो ये दूसरा फैक्टर x -9 इज इक्वल टू 0। तो ये स्टेप आप लोग इसी तरह डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नो नीड टू स्प्लिट। ये स्प्लिट भी नहीं किया तो आप लोग डायरेक्टली इसी तरह उसका फैक्टराइजेशन लिख सकते हैं, कब? इफ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो वी कैन फैक्टराइज दिस quadratic polynomial directly x minus 36 into x minus 9 is equal to 0. Okay, so now here product of this two bracket is 0. यहाँ पे ये दोनों प्रोडक्ट ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब एक तो फर्स्ट ब्रैकेट 0 है, नहीं तो सेकंड है। सो आइदर x फर्स्ट ब्रैकेट नहीं कि x minus 36 is 0 और x minus 9 is equal to 0. तो नाउ वी कैन ट्रांसफर हियर, ट्रांसफर करेंगे हम लोग, ये -36 लेफ्ट साइड से राइट साइड में ट्रांसफर किया, इट बिकम प्लस, सो वी गेट x इज इक्वल टू 36, यहाँ पे 9 ट्रांसफर किया तो x इज इक्वल टू 9, सो वी गेट x इज इक्वल टू 36 एंड x इज इक्वल टू 9. नाउ वी कैन मेक हियर टू केसेस, x मीन्स व्हाट? नंबर ऑफ मार्बल्स विथ जॉन, ये दो आ गए आंसर, तो हम लोग यहाँ पे दो केसेस बनाएंगे। इफ नंबर ऑफ मार्बल्स विथ जॉन हैव x that is a 36, then the number of Janvi's marble, जानवी के पास कितने मार्बल थे? इसके जॉन के पास टोटल मार्बल में से जॉन के मार्बल माइनस करना है, 45 माइनस एक्स, लेकिन 45 माइनस एक्स आपका 36 है, तो 45 माइनस 36 दैट इज 9, तो जानवी के पास 9 होंगे। यदि जॉन के पास 36 है तो जयवंती के पास होंगे 9। अभी सेकंड केस, यदि जॉन के पास 9 मार्बल है, इफ नंबर ऑफ मार्बल्स विद जॉन हैव, यदि 9 है तो नंबर ऑफ जॉनविस मार्बल 45 माइनस 6 यानी कि 45 माइनस 9 दैट इज 36, तो जयवंती के पास 36 होंगे। यदि जॉन के पास 9 है तो जयवंती के पास 36, तो ये दो केसेस आपको यहाँ पे मिलती है। ओके, तो इन दिस वे we will solve any problem using factorization method. So okay friends, if you have any doubt then ask me on my WhatsApp number 9420439784. Okay, next time will we see remaining example based on this topic. So we will stop here. So goodbye, have a nice day friends, thank you.